Hello students, welcome to Famous Notes and welcome to this lecture series on top 5 numerical problems in physics for JEE and NEET students. As you already know कि 11th और 12th की जितनी भी फिजिक्स है हर चैप्टर में हम एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स उठाते हैं और उनको यहाँ पे थॉरोली डिस्कस करते हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स ऑन थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी. लेट्स सी द top 5 numericals on this chapter which boost your numerical strength for to crack your exams, national level exams, NEET and JEE. This is our first question. 2 moles of a monoatomic gas 2 moles of a monoatomic gas are mixed with n moles of polyatomic gas. If the mixture behaves like a diatomic gas, then I have to find the value of n. The question is something like this. मेरे पास है मोनोएटॉमिक गैस है 2 मोल्स एंड आई एम हैविंग पॉलीएटॉमिक गैस. ठीक है, इट्स ऑफ n मोल्स. मैंने इनको मिक्स किया एक ही कंटेनर में. ठीक है, इस जो एक कंटेनर है व्हाट इट बिहेव्स लाइक, इट्स नाउ डायएटॉमिक गैस. क्या है ये? डायएटॉमिक गैस. तो मुझे n बताना है कि ये n जो नंबर ऑफ मोल्स है ये कितना है. नाउ सी, जो मोनो एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हम डिनोट करेंगे f से. डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मोनो एटॉमिक गैस की है इट्स 3. सिंपल. जो पॉली एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हाउ मच इज दिस? पॉली एटॉमिक की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है इट इज 6. 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल. ओके, 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल. बहुत ही बढ़िया. जो नाउ इट इज गिवन, जो क्वेश्चन में दिया गया है, जो मिक्सचर है मेरा डायएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? इट्स 5. 3 translational and 2 rotational. Okay, it's 5. Is this quite clear to you or not? Good. Now, जो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मिक्सचर लिखेंगे. ऑफ ए मिक्सचर, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मिक्सचर वी डिनोट बाय F इज इक्वल टू F1N1 प्लस F2N2 होल डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. What do you mean by this? F is the degree of freedom of the mixture. अच्छा लिखा है ऊपर. F1 is the degree of freedom of one gas. N1 is the number of moles of that gas. Similarly, F2 is the degree of freedom of another gas and N2 is relevant number of moles. Simple. Now you know that जो हमारा mixture है it is diatomic gas. So what is F? It's 5. Is equal to, what is F1? What is your F1? It's monoatomic gas. It is 3 into, what is the number of moles of monoatomic gas? It's 2 given in the question. Plus, what is the F2? F2 is the degree of freedom of polyatomic gas. How much is this? It's 6 into, how many moles of monoatomic gas are present there in the problem? It's n number of moles whole divided by n1 plus n2. That means 2 plus n. Simple. I can write it as 5 2's 10 plus 5n is equal to 3 2's 6 plus 6n. I can write it as 10 minus 6 is equal to 6n minus 5n, which gives me n is equal to 4. That means the number of moles किसके दिस पॉलीएटॉमिक गैस के जो है इट इज oh my god, it's 4 moles. So n जो है हमें तो n ही फाइंड आउट करना है. So n is over 4 moles. Let's do the screenshot of this question. 1 2 3. I hope this is very quite clear to you. Let's move to the very question number 2. Beautiful. The pressure of an ideal gas varies according to the law P is equal to varies according to the law P is equal to P0 minus AV square. Find the highest temperature that can be attained by the gas. Simple है.
आइडियल गैस की इक्वेशन, सॉरी, आइडियल गैस का जो प्रेशर है इट वेरीज अकॉर्डिंग टू P इज इक्वल टू P0 माइनस AV स्क्वायर, वायर P0 एंड AU आर योर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, वायर एंड V इज द वॉल्यूम, V इज द वॉल्यूम हियर, ब्यूटीफुल। फाइंड द, मुझे हाईएस्ट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जो कि ये गैस अटेन करेगा। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट? वी नो दैट आइडियल गैस, we know that ideal gas equation. What is your ideal gas equation? It is PV is equal to nRT. Okay, given क्या है मेरे पास? P is equal to P0 minus AV square. Is this given? Yes, it's given. Now वैल्यू सबस्टिट्यूट करेंगे, सो इट गिव्स मी P0 माइनस AV स्क्वायर इंटू V किसके बराबर है? आपके nRT का। सिंपल, मैंने जस्ट सबस्टिट्यूट किया है वैल्यू यहां से लेके यहां तक, और इट कैन बी रिटन एज P0V माइनस AV क्यूब is equal to nRT. Is this quite clear to you or not? Suppose this is my equation number first. Okay, this is my equation number first. बहुत ही बढ़िया जी। अब जो मेरा P है, since it depends upon V, तो व्हाट आई विल डू इज, और मुझे हाईएस्ट टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना है, मैं डिफरेंशिएट करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विद रेस्पेक्ट टू V। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डिफरेंशिएट ओ हो शिट, खुला था। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम V, we get, okay, so it is P0 minus 3AV as you know is equal to, यहां पे जो ये टर्म है हमारी, it does not depend upon V, thus it is 0, simple, but oh sorry, it is nR dt over dV because टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। आई एम सॉरी, मैंने व्हाट आई थॉट कि जो आपका टेम्परेचर T है इट्स कांस्टेंट, बट इट्स नॉट कांस्टेंट। हम जनरल यहाँ पे फिलहाल ये सॉल्व कर रहे हैं। ओके, फॉर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, फॉर जो कि क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करना है, फॉर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T, what I will have is dt over dV should be equal to 0. It's the condition. It is the condition for the highest temperature, because your temperature is dependent upon volume V. So highest temperature जो होगा आपका, ये वॉल्यूम पे उस टाइम डिपेंड करेगा ही नहीं, बिकॉज हाईएस्ट टेम्परेचर है। टेम्परेचर एट दैट मोमेंट, एट दैट इंस्टेंट should be equal to, should be constant, thus dt over dV is equal to your 0. ओके, और क्या मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं कैसे? P0 माइनस 3AV, इट इज, अच्छा क्यूब था ना, यहाँ पे 3A स्क्वायर है, 3A स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से मेरा जो वॉल्यूम V है इट इज इक्वल टू P0 बाई 3A रूट। ओके, नाउ जो मेरा V है इसको मैं सबस्टिट्यूट करूंगा टू माय इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरी? P0 माइनस V, ओके, P0 माइनस V माइनस AV क्यूब। आर यू गेटिंग मी और नॉट? मैं V वहां पे कॉमन निकालूंगा, सो इक्वेशन, एक सेकंड, देखो जो वॉल्यूम V है ना, नाउ पुट V इज इक्वल टू रूट ऑफ P0 डिवाइडेड बाई 3A इन इक्वेशन फर्स्ट।
सिंपल। अब मैंने इसको थोड़ा सा ये किया था। ओके, जो मेरा v है इसको मैं सबस्टिट्यूट करूँगा टू माई इक्वेशन फर्स्ट। सो व्हाट आई विल हैव इज p0 माइनस a इंटू वी स्क्वायर विच इज़ p0/3a, और मैंने कॉमन निकाला है v को, दस इट इज़ p0/3a इज इक्वल टू योर nRT, इज इक्वल टू योर nRT। यहाँ पे जो टेम्परेचर मैक्सिमम होगा आपका, इट इज़ नथिंग बट योर 2p0/3nt 3nr रूट ऑफ p0, कैलकुलेशन तो आएगी 3a। दिस इज द answer to this very numerical problem. I hope this is very quite clear to you. To the screenshot, doubt नहीं रहना चाहिए. It's a very beautiful problem. 1 2 3 okay. 1 2 3 okay. I hope this is very quite clear to you. Let's jump to the question number 3rd. The efficiency of Carnot cycle is 1/6. The efficiency of Carnot cycle is the efficiency of Carnot cycle is 1/6. If for reducing the temperature, if for reducing the temperature of the sink by 65 degree, हम sink का temperature reduce करेंगे. The efficiency now becomes 1/3. Find the initial and final temperature. Find the initial and final temperature between which the cycle works. That means मेरे पास Carnot cycle है, इसकी efficiency है 1/6. Okay. अब मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर को रिड्यूस किया 65 डिग्री, ठीक है। अब जो नई एफिशिएंसी है इट इज़ 1/3, तो मुझे फाइंड आउट करना है इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर कितना था मेरे सिस्टम में। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू और नॉट? आई होप सो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सॉल्यूशन। इफ T1 T2 or the temperatures of the source and sink, you know that if T1 and T2 are temperatures of source and sink. Okay, if T1 and T2 are the temperature of source and sink, यही तो मुझे find out करना है। Then what is the efficiency? What is the formula of the efficiency of Carnot? It is eta is equal to 1 minus T2 over T1, where T2 is the temperature of the sink and T1 is the temperature of the source. Given in the question, it is 1/6. Okay, 1 minus T2 by T1. Let us suppose this is my equation number first. It is given in the question. अब क्या किया हमने? We have reduced the temperature. When temperature किसका? When temperature of fucking sink कुछ ना reduces by 65 डिग्री सेल्सियस, उस टाइम जो ईटा है आपका इट इज 1/3. सो हम क्या लिख सकते हैं? 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 माइनस 65 डिग्री। हमने इसी का सिंक का तो टेम्परेचर क्या है ना, हमने कम 65 डिग्री डिवाइडेड बाई T1. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. सिंपल। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू आर नॉट? मुझे T1 और T2 फाइंड आउट करना है. आई एम हैविंग टू फॉर्मूला, आई एम हैविंग टू वेरिएबल्स, दस आई कैन इजिली सॉल्व दिस बाय लीनियर अलजेब्रा. सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, ये तो आपको आएगा. वी गेट, आप एक काम करना, T1 का वैल्यू डालना ऊपर इक्वेशन में, यू विल गेट द आंसर. व्हाट यू विल हैव इज फाइनली T1 जो आपका होगा इट इज 390 केल्विन, और जो आपका T2 होगा ये होगा आपका 325 केल्विन. आई होप दिस इज वेरी क्वाइट क्लियर टू यू. सिंपल 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 सिंपल. टू द स्क्रीन शॉट. 1 2 3. ओके. ले जा तू बहकी रात. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. ले जा. इफ एट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हीलियम गैस है मेरे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, इट ओबेज द इक्वेशन, this equation, this is very important. P की power of -2/5 is equal to constant. Okay, what is the heat given to the gas when the temperature of 2 moles of the gas is raised from this. मेरे पास हीलियम गैस है कंटेनर में, जो कि फॉर्मूला
टेम्परेचर और प्रेशर की जो रिलेशन है इट इज टीपी की पावर ऑफ -2/5 इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ हीलियम के साथ दिया। मैंने टेम्परेचर रेज किया T से लेके 4T तक, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि हीट कितनी हो गई वहां पे। 1 सेकेंड। हीट कितनी हो गई मतलब हमने कितनी हीट दे दी सिस्टम को। कौन सा, ये क्या है? चलिए बहुत ही बढ़िया, आज ये करेंगे, पहली बार कर रहा हूँ। देखो, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट गिवन। क्यों जो होता है आपका, इट इज एन नंबर ऑफ मोल्स, सी स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। दैट मीन्स मेरे पास डेल्टा टी दिया गया है, इट इज टी से लेके 4T तक मैंने चेंज किया। सो व्हाट इज द डेल्टा टी? इट इज नथिंग बट योर 3T। इट्स नथिंग बट योर 3T। मेरे पास एन भी है, एन इज योर 2। मुझे फाइंड आउट करना है सी। अगर मेरे को सी मिल गया, मेरे पास तीनों टर्म्स है, तो मुझे क्यू भी मिलेगा जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। व्हाट आई नीड टू डू इज आई हैव टू फाइंड द सी, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वी नो दैट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्मूला होती है, इट्स आर डिवाइडेड बाय गामा -1, गामा इज CP/CV, माइनस आर डिवाइडेड बाय R-1, और डिवाइडेड बाय R-1। और क्या है आपका? इट इज फ्रॉम द रिलेशन PV पावर R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दैट मीन्स देखो, PV की पावर ऑफ R, जो यहाँ पे R होगा ना, वही R यहाँ पे लिखना है। ये तो हम थ्योरी में पढ़ाते हैं ऐसे, बट हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आई विल नॉट गो इन डेप्थ के इक्वेशंस कहाँ से क्या आ गई। ठीक है, ओके। इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू आर नॉट? ब्यूटिफुल। व्हाट आई नीड टू डू इज पहले मैं R फाइंड आउट कर। गामा तो मेरे पास है, गामा कैसे है मेरे पास? आई एम हैविंग हीलियम गैस। गामा फॉर हीलियम जो है इट इज योर 5/3। मेरे पास सब कुछ है, R तो कांस्टेंट है, मुझे बस R चाहिए। R कहां से मिलेगा मुझे? PV की पावर ऑफ R इज इक्वल टू कांस्टेंट। मगर मेरे पास जो दिया गया है इट इज PT की पावर ऑफ -2/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो मैं पहले इसको यहां से लेके यहां तक चलने की कोशिश में करूंगा। ओके, आई होप सो इट्स वेरी क्वाइट क्लियर टू यू। चलिए, वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। क्या मेरा T है बराबर PV डिवाइडेड बाय NR? यस। गिवन इन द क्वेश्चन क्या है मेरे पास? TP की पावर ऑफ -5/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, क्या मैं इसको लिख सकता हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला? क्या मैं इसको लिख सकता हूं PV/NR, P की पावर ऑफ -2/5 इज इक्वल टू कांस्टेंट? यस। चलिए, यहाँ पे कैच आने वाले हैं। यहाँ पे मुझे मिला PV की पावर ऑफ 5/3, bases of same power should be added। 1 - 2/5 is your 3/5। ओके, सो PV की पावर ऑफ 5/3 इज इक्वल टू N और कांस्टेंट। N और तो भी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट होगा आपका कांस्टेंट। क्या मैं इस पूरे टर्म को यहां पे कांस्टेंट लिख सकता हूं? यस। दैट मीन्स मुझे PV की पावर ऑफ R इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो मैंने यहां पे बताया था आपको। व्हाट इज R? देयरफॉर R जो है आपका इट इज 5/3। अब मेरे पास सब कुछ है। नाउ मैं C निकालूंगा पहले। चूतिए, C इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई गामा -1 माइनस R डिवाइडेड बाई R-1। ओके, C इज इक्वल टू R डिवाइडेड, व्हाट इज द गामा फॉर हीलियम? 5/3 -1 माइनस R डिवाइडेड बाई
व्हाट इज आर, क्या निकला हमारा 5/3 -1. व्हाट इज योर सी, इट इज 0. ये तो कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पे. इफ योर सी इज 0 देन व्हाट इज योर क्यू इज 0. दैट मीन्स जो हीट है, हीट गिवन टू दिस गैस इज योर 0. दैट्स योर आंसर. देखो मैं आंसर को मैं पीछे से ही आ गया इसको सॉल्व करते करते. आई होप दिस इज वेरी क्वाइट क्लियरिटी. मजा आया होगा आपको. ओके लेट्स टुक द स्क्रीनशॉट यार. दिस वाज अ वेरी गुड प्रॉब्लम. ओके डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी है. चलिए वी आर हैविंग द लास्ट टुडे. During an adiabatic process, the pressure of a gas is found to be proportional to the cube of its absolute temperature. The ratio of Cp or Cv, which is gamma, is. मुझे gamma find out करना है. चलिए, we know that for an adiabatic process, once again, for the adiabatic process, अरे यार, for adiabatic process, P की पावर ऑफ 1 माइनस गामा T पावर ऑफ गामा होता है आपका कांस्टेंट. ठीक है. ओके क्या मैं लिख सकता हूं P जो है आपका इट इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर ऑफ गामा डिवाइडेड बाय गामा -1. यस, फ्रॉम द अबव इक्वेशन योर P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर ऑफ गामा ओवर गामा -1. Is this quite clear to you or not? Now it is given that जो प्रेशर है आपका इट्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्यूब ऑफ द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर. क्या मैं लिख सकता हूं इफ दिस इज 1 दिस इज योर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. क्या मैं लिख सकता हूं टेम्परेचर की पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू टेम्परेचर की पावर ऑफ गामा ओवर गामा -1. If bases are equal, then power should be also equal. That means gamma divided by gamma -1 किसके बराबर है आपके 3. From here your gamma is equal to 3/2. This is your answer. जो gamma है आपका कितना है ये 3/2. That's it. Now there is one homework to you. Homework आप कमेंट में यहीं पे लिखोगे. जो gamma 3/2 होता है ये किस गैस का है, फिर गैस कौन सी है. ठीक है. चलिए हो गया हमारा आज का कार्यक्रम. लेट्स कैच यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो. एंड आई होप कि आप मेरा बाकी भी देख रहे होगी. देयर आर 2-3 प्लेलिस्ट्स गोइंग ऑन, उनको भी आप गो थ्रू कर रहा. थैंक्स.